Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial, and this is the second part of processes of recombinant DNA technology. In the first lecture of process of recombinant DNA technology, we have discussed about the isolation of DNA and extraction of DNA from a living cell. In the method of extraction of DNA from a living cell, first we used to treat that living cell by an appropriate cell opener. For example, if it was a plant cell, we used to treat it either with cellulase or either with pectinase. Then whatever extra DNA or extra chromosomal material is there, we used to digest it. For the digestion of protein, we used to add protease. Digestion of carbohydrate and polysaccharide, we used to add amylase. Digestion of lipid, we used to add lipase. And digestion of RNA molecule was done by RNase, ribonuclease. I told you that we do not add DNAs there. Then after centrifuging that sample, we used to add a chilled ethanol, and with chilled ethanol DNA used to precipitate and come out like cloud. That DNA was being very much detectable in the test tube, and by using a glass rod we used to take it out. That method was referred as to spooling. So first method in the process of recombinant DNA technology was isolation of DNA. Similarly, we used to isolate a vector from the respective prokaryotic cell or whatever the host of the vector is. I told you vector is not only present in bacteria, but they are also present in other organisms as well. Then we used to digest our gene of interest. We used to digest that extracted DNA and vector with the same restriction endonuclease to take out our gene of interest and to cut out the vector plasmid. After digestion, the third step was separation. After fragmentation with restriction endonuclease, the third step was separation, and depending upon the size, under the electric charge, we used to separate DNA molecule, and that method is known as gel electrophoresis. We have already discussed that. Then those separated DNA, they were being amplified by using a technique which we call PCR. PCR is having three steps. One was denaturation at 94 degrees centigrade, annealing at 54 degrees centigrade, and polymerization at 72 degrees centigrade. In the annealing, in the polymerization process, there was a correction in the previous lecture which I have discussed in the group. The new synthesis, the direction of new strand, the direction of synthesis of new strand was 5' to 3'. तो उसको ठीक कर लेना आप. तो this is what we have learned in the previous lecture. और जो भी आपके पास एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट थे, वी यूज टू लाइगेट इट, एंड आफ्टर लाइगेशन व्हाट इज फॉर्म्ड? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. After the formation of recombinant DNA molecule, the next step would be the insertion of that recombinant DNA molecule into the host cell organism, which we call transformation. So today, I have already discussed the process of transformation in our topic. Method of gene transfer, direct and indirect method of gene transfer has been covered. So I will be just taking a brief here, right? So next step in recombinant DNA, in the process of recombinant DNA technology, would be insertion of recombinant DNA into host organism. Insertion of recombinant DNA into host organism, or let's call that a host cell. Now this is what we call transformation if the host organism is prokaryote, and we call that transfection if the host organism is eukaryote. So for the time being, let me call that transformation. तो मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म इस मेथड में ई कोलाई या किसी बैक्टीरिया को यूज करने वाला हूँ. Now we know that we are having both direct and indirect method. Both direct and indirect method are known to introduce the desired gene. I will be just taking a brief here. Both direct and indirect method are known to introduce our desired gene इन द होस्ट. जो सबसे कॉमन मेथड होता है
the most commonest method of transformation to transfer our desired gene is that this desired gene is ligated with the plasmid vector. In the most commonest method, desired gene, in most common method, desired gene is ligated with plasmid vector. Is that clear? तो मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? जो आपने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र था वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या करते हैं उसके अंदर जो होस्ट होता है वो एक प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया है और इस प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया को मैं पहले कॉम्पिटेंट बनाऊंगा। प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट। और इसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं बच्चों? इट हैज़ बीन मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग इट, द मोस्ट कॉमन मेथड इज बाय ट्रीटिंग इट with divalent cations like calcium ion। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई जो ये है वो ट्रांजिएंट पोल के थ्रू डीएनए के अपटेक को बढ़ा देता है। तो मेनली आपने जो सबसे कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो डिजायर्ड जीन लाइगेटेड विद प्लाज्मिड वेक्टर है। इस मेथड के अंदर जो प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया होता है उसको सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। और उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं? बाय ट्रीटिंग इट with a divalent cation, most commonly it is calcium ion। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास ये जो प्लाज्मिड है, लेट्स से दिस इज प्लाज्मिड हेयर, और इसके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। प्लाज्मिड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वी कॉल दैट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैन यू सजेस्ट मी अदर नेम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? आंसर इज काइमेरिक डीएनए। और इस प्लाज्मिड के अंदर एक रेजिस्टेंट जीन भी है, इफ़ यू डू रिमेंबर, याद आ रही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल दिस रेजिस्टेंट जीन इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, द प्लाज्मिड विच इज हैविंग अ एलियन डीएनए, ये जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज हैविंग एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंड व्हेन दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, जो भी आपके पास होस्ट सेल होगा, जैसे ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, जो ये होस्ट सेल है ये कैसे हो जाएगी? इट वुड बिकम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। फिर दो अलग अलग केस बताए थे कि जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर सकते हैं एम्फिसिलिन के ऊपर। आंसर इज यस, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोज ऑन एम्फिसिलिन और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डू नॉट ग्रो। तो इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल सेल होगी दैट वुड बी ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, वे एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल दे वुड डाई। इज दैट क्लियर अप टू हियर? सो व्हाट आई हैड टोल्ड यू कि कैसे इंसर्शन ऑफ डीएनए करते हैं इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म सेल। आपके पास दोनों मेथड है, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। उसके अंदर आपका जो डिजायर्ड जीन है उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे। जो भी आपके पास सेल होगा उसको पहले आप कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं? बाय ट्रीटिंग इट विद डाइवेलेंट कैटायन। देन जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या काइमेरिक डीएनए होगा, उसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है और उसको आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनसाइड द कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट अगर ट्रांसफॉर्मेंट हो गए हैं तो एम्फिसिलिन के ऊपर ग्रो करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ एम्फिसिलिन के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे। तो आई कैन से ऑल द ट्रांसफॉर्म सेल आर नाउ सिलेक्टेड फॉर द फर्दर यूज़। और जितनी भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है उनको हम सिलेक्ट करते हैं टू यूज़ इन द बायोरिएक्टर। ऑल ट्रांसफॉर्मेंट सेल grows on amphisilin and are selected to be used in bioreactor। इतना समझ आया बच्चों? बायोरिएक्टर वगैरह क्या होता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्कर जीन का कंसेप्ट मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। मार्कर जीन को मैं पहले ही बताया था, रिपोर्टर जीन होता है। What is the definition of marker gene? How you define marker gene? A marker gene whose phenotype expression can be monitored। कोई भी एक ऐसा जीन जिसका जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मार्कर जीन। और ये जो मार्कर जीन है रिपोर्ट करता है अबाउट द एक्टिविटी
और चेंज, जो भी कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे बात करूँ, एम्फिसिलिन के ऊपर ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग किसके बेसिस पर हो रही है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बेसिस पर हो रही है। इसी को बोलते हैं मार्कर जीन। और मार्कर जीन का दूसरा नाम रिपोर्टर जीन भी होता है, ये मैंने बता दिया था आपको लेग-जेड के केस में। तो जब भी आपसे मार्कर जीन के बारे में पूछा जाए तो आप बोल देना कि मार्कर जीन इज रेड जीन हुज फिनोटाइप एक्सप्रेशन कैन बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग अ molecular biology experiment and that expression actually report in advance either the event has taken place or not. For example, अगर मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का पता करना था तो ट्रांसफॉर्मेशन का पता कैसे चल रहा है मुझे? एम्फिसिलिन के ऊपर ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक्चुअली वो पहले ही पढ़ चुके थे हम, मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो सिर्फ एक तरह से बताया। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर एंटर करा के उन कॉम्पिटेंट होस्ट की कॉलोनी को ग्रो कर लेंगे। और कैसे पता चलेगा कि एंटर हुआ है या नहीं हुआ है? बाय यूजिंग मार्कर जीन। और जो भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल होंगे जिनके अंदर इंसर्शन एंड एक्टिवेशन हो चुका है, या फिर मैं सिंपली बात करूँ कि ब्लू वाइट कॉलोनी थी या जो भी थी, जो भी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होंगे उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा टू बी यूज्ड इन ए बायोरिएक्टर। दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? शायद कल्चरिंग बताया था आपको। आफ्टर दैट, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन देयर वाज कल्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन। अब पढ़ लेते हैं कल्चरिंग के बारे में। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल, जो भी आपके पास ये होस्ट सेल है, इन ए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम एट ए लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बायोरिएक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, और बायोरिएक्टर से अक्सर क्वेश्चन वगैरह पूछ ले जाते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी, देखो अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, जितने भी स्टेप्स है सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वल इंपॉर्टेंस करते हैं। किसी भी एक स्टेप में अगर गलती कर दी तो हो सकता है आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो सही ना मिले। let me write here the name of next step. Next step would be the culturing of ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड यूज़ करें या फिर सिलेक्टेड वर्ड यूज़ करें? मैं सिंपली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर होस्ट सेल। कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन ए कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट। और कल्चर क्यों कर रहे हैं? इसको हम याद रखना, अभी जो करने वाले वो एक लार्ज स्केल पे करने वाले हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अपना जो जीन प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो सके। कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम एट अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करनी होगी, कई सारी चीज़ें सीखने वाली हैं अभी। तो हमारे पास जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल आए, उसी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपका आंसर होगा दैट अल्टीमेट एम और अल्टीमेट गोल ऑफ आरडीटी इज़ टू प्रोड्यूस आ डिज़ायरेबल प्रोटीन। जैसे हमने जब शुरू किया था एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको इंसुलिन के बारे में बता रहा था कि लेट से आपको इंसुलिन प्रोडक्शन कराना है, तो अल्टीमेट जो एम होता है या गोल होता है इस आरडीटी एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है? इट इज़ टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन। कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में? आंसर वुड बी इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो मैं ये चीज़ नहीं लिखने वाला हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट अल्टीमेट गोल ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन इन द लार्ज क्वांटिटी। इसलिए फॉर दिस, इस सब को करने के लिए आई विल से एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन इज इसेंशियल। जो भी जीन आपने इंसर्ट किया है वो जीन एक्सप्रेस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ ऐसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो उस एक्सप्रेशन को बढ़ा सके। सो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इसेंशियल एंड टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन सेवरल इंड्यूसर्स आर अप्लाइड। इंड्यूसर्स में आपके जो है न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, इंड्यूसर्स में आपके कुछ आयंस भी हो सकते हैं, एक परफेक्ट पीएच हो सकता है, एक परफेक्ट टेम्परेचर हो सकता है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ एयर हो सकता है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, XYZ जो भी है। तो सर्टेन इंड्यूसर्स आर यूज्ड when we are going to culture this host cell in the host cell in nutrient medium. And why these inducers are used? They are used to increase the production of target protein of the gene of interest. अब मैं सबसे पहले आपको बताया तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन।
any protein encoding gene if expressed in a heterologous host, any protein encoding gene if expressed in a heterologous host, we call that recombinant protein. What is the definition of recombinant protein? If I explain recombinant protein here, any protein expressing gene, any protein expressing gene, protein encoding gene लिखना चाहिए, any protein encoding gene when expressed in a heterologous host. देखो हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब सिंपली समझ में आता है, अगर आपको इंसुलिन वाले जीन को एक्सप्रेशन चेक करना है तो ऐसा होस्ट सेलेक्ट करना जो अपना इंसुलिन नहीं बनाता है. तो एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोलोगस होस्ट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. बोर्ड वगैरह में कई बार ना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप सिंपली डेफिनेशन याद रखेंगे. जब भी कोई प्रोटीन एनकोडिंग जीन किसी एक ऐसे होस्ट के अंदर एक्सप्रेस होता है जो होस्ट वो उस प्रोटीन को नहीं बनाता है, तो उस प्रोटीन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये होस्ट है ई कोलाई. अब ई कोलाई तो इंसुलिन नहीं बनाता है, आपने इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई में विद अ वेक्टर, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट जीन इन ई कोलाई. अब ई कोलाई की जब फर्दर कॉलोनीज आएगी तो उसके अंदर इंसुलिन प्रोटीन बन रहा होगा. अब ये जो इंसुलिन प्रोटीन है ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. क्योंकि कैसे होस्ट के अंदर बना है? आंसर इज हेटेरोलोगस होस्ट. अगर इस इंसुलिन जीन को मैं एक ह्यूमन के अंदर ही एंटर कर देता हूँ तो आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि जो इंसुलिन बन रहा है वो उसके अपने सेल का है या जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोडक्ट है. तो हेटेरोलोगस होस्ट का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ. So how you define recombinant protein? Answer to that question is that when any gene, any protein encoding gene, when it has been introduced in a heterologous host, we call that type of protein as recombinant protein. For example, जैसा भी example discuss किया, expression of human insulin in a vector of E. coli. It's a suitable example of heterologous protein where bacteria serve as a heterologous host. Where bacteria serve as a heterologous host. All right. Then I will love to tell you कि जो इंडस्ट्रियल हार्वेस्टिंग होती है बच्चों, जब भी आप इस प्रोडक्ट को अब इंडस्ट्रीज़ में आपको ये बनाना है, आपको बायोरिएक्टर तक बात लेके जानी है. जैसे हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहीं वर्ड यूज़ किया होगा, तो जब हम इंडस्ट्रियल हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है लेबोरेटरी स्टेप जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं. दूसरा स्टेप पढ़ेंगे पायलट प्लांट जिसमें छोटा सा बायोफर्मेंटर यूज़ करते हैं. और तीसरा स्टेप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो आई विल राइट ही दिस फॉर यू दैट इंडस्ट्रियल हार्वेस्टिंग ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस passes through 3 steps. इंडस्ट्रियल हार्वेस्टिंग, और यहाँ पे स्केलिंग अब भी बता दूंगा मैं. इंडस्ट्रियल हार्वेस्टिंग ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस passes through 3 steps. क्या क्या स्टेप होंगे? पहला स्टेप होगा लेबोरेटरी स्केल, दूसरा स्टेप होगा पायलट प्लांट जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, कभी आएगा पायलट प्लांट कंसेप्ट, और तीसरा स्टेप होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. फर्स्ट इज लेबोरेटरी स्केल, सेकेंड इज पायलट प्लांट, and third is मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. लेबोरेटरी स्केल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक के जो भी प्रोसेस होते हैं, आप लेबोरेटरी स्केल से शुरू करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक जो भी काम करेंगे उस सब चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्केलिंग अप. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल
अप टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भी हम मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे उस मेथडोलॉजी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्केलिंग अप। इज दैट क्लियर बच्चों? सो डेवलपमेंट फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नोन एज स्केलिंग अप। व्हाट इज स्केलिंग अप? सिंपली डेवलपमेंट फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऑल राइट, नाउ फर्दर इसको डिफाइन करते हुए मैं आपको ना एक की स्टेप्स बता देता हूँ जो किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में को यूज़ करने के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद मैं शुरू करूँगा बायोरिएक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट लेट यू मेक ए चार्ट हियर एंड दैट चार्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू लर्न ऑल द प्रोसेस। वैसे तो प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं है, पर अगर ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है या अगर ये चार्ट आप बना सकते हो अब, तो इट सिंपली मीन्स कि चीज़ें समझ में आ रही और आपका जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी क्लियर होता जा रहा है। इसमें जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जो आगे पढ़ना बाकी है वो भी इंक्लूड करते चले जाएंगे। सो की स्टेप्स इन ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। की स्टेप्स in a biotechnological process। सबसे पहले क्या इसकी स्टेप था? अगर आपको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस करना है सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो वन बाय वन एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर पूरा, जिसमें सारे की स्टेप शो करते चले जाएंगे। जो सबसे पहला की स्टेप है, व्हाट इज दैट? दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब समझते हो? सिलेक्शन भी कह सकते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन। आपको कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शुरू करने से पहले जो बेस्ट माइक्रोब है वो सिलेक्ट आउट करना होता है। यू हैव टू फाइंड द बेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ सुटेबल फॉर योर जॉब। ऐसा ना हो कि भाई आपने ऐसे होस्ट सेलेक्ट कर लिए जो दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे डीएनए को अलाउ ही नहीं करते हैं। आपने ऐसा प्लाज्मिड सेलेक्ट कर लिया जिसका जो टर्नओवर नंबर है वो है ही नहीं, या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसा है जो म्यूटेंट है, XYZ जो भी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग का मतलब होता है फाइंड आउट द बेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइंड आउट द बेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म suitable for the job, suitable for the job। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि पूरा का पूरा चार्ट इस बोर्ड पे आ जाए। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या किया आपने? स्क्रीनिंग कर लिया। स्क्रीनिंग में आई विल लव टू ऐड कि अगर आप राइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सेलेक्ट द राइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ सुटेबल फॉर योर बायोलॉजिकल सिस्टम, तभी आपका एक्सपेरिमेंट आगे जा पाएगा। अदरवाइज बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप कर ही दोगे। स्क्रीनिंग करने के बाद जो सेकंड होगा डैट वुड बी जितने भी पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो भी कर लीजिए। द नेक्स्ट स्टेप वाज ऑल द पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको मैनिपुलेशन करना इन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वो सब कर लो यहीं पर। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया ये जो भी आपका कटिंग ऑफ डीएनए है, जॉइनिंग ऑफ डीएनए है, ये सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो बाय डूइंग ऑल द पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग यू कैन मॉडिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू कैन मॉडिफाई to modify a microorganism। ये अभी लेबोरेटरी स्केल की बात चल रही है सारी, मैं क्लियर कर दूं। ये सारा काम आप कहाँ करोगे? ये सारा काम आप कर रहे हो लेबोरेटरी स्केल पर। देन आगे चल के फिर इसी प्रोसेस को आप लेबोरेटरी स्केल में आगे बढ़ाओ। अभी हम पढ़ लेते हैं कि लेबोरेटरी स्केल से मॉडिफिकेशन स्केल तक कैसे जाएंगे। आप जो है सिलेक्शन करने के बाद जो भी प्रोसेस आपने करने थे, सेपरेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए, आई एम राइटिंग इट एज लेबोरेटरी स्केल हेयर।
लेबोरेटरी स्केल से आप कहाँ बढ़ जाओगे, यू विल बी मूविंग टू पायलट प्लांट, छोटा फर्मेंटर, राइट। और पायलट प्लांट से आगे आप कहाँ जाओगे, यू विल बी मूविंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो नेक्स्ट आएगा आपका दैट वुड बी यूअर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब ये जो ये चीज़ बताई है मैंने, ये क्या होता है बेटा, दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल स्केलिंग अप। ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं ना एक रफ सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको बायोरिएक्टर का। वैसे तो बायोरिएक्टर में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ अभी आगे आपको, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट मी मेक अ रफ सा डायग्राम ऑफ ए फर्मेंटर, और उसमें मैं शो कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व्हाट यू विल बी डूइंग, लेट्स से यू आर हैविंग ए फर्मेंटर हियर, उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े कर्वी होते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। Then fermenter blade, let's say this is one fermenter blade here, what it is fermenter और बायोरिएक्टर बेटा एक ऐसा मशीन होगा जिसमें ना आप लार्ज स्केल कल्चरिंग कर रहे होंगे। आप इस कंटेनर के अंदर खूब सारा न्यूट्रिएंट अगार मीडियम डाल के सारी कंडीशन दे के जो भी आपकी सेल्स वगैरह उनको ग्रो करते चले जाएंगे। फर्मेंटर को आगे डिस्कस करना है, डेफिनेशन वगैरह सब बताऊंगा। तो ये जो फर्मेंटर होता है इसके अंदर सारा कंट्रोल कंडीशन होती है। इस फर्मेंटर के अंदर आप मीडियम ऐड कर देते हैं, इस फर्मेंटर के अंदर आप अगार डाल दिया ग्रोथ का मीडियम, आपने न्यूट्रिएंट डाल दिया, आपने एनर्जी सोर्स डाल दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे बच्चों, आपने एक सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सेल एरोबिक जाना चाहता है या एनारोबिक जाना चाहता है, देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वेरी कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड ऑल द फैक्टर। तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा मॉनिटरिंग, वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वुड बी देयर, वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और प्रोसेस कंट्रोल वुड बी देयर। तो प्रोसेस कंट्रोल में आप क्या क्या कर रहे हैं, यू हैव बीन मॉनिटरिंग पीएच एंड टेम्परेचर। अब इससे आगे बताता हूँ भी। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव डन स्क्रीनिंग, सिलेक्शन ऑफ योर बेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन यू हैव डन पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन यू हैव टेक इट टू द लेबोरेटरी स्केल, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तक आ गए आप। फिर उसके बाद छोटा फर्मेंटर यूज़ किया जो पायलट प्लांट, डेट वुड बी योर पायलट प्लांट है। पायलट प्लांट से आपने उसको मूव कर लिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, आई मीन टू से स्केलिंग अप। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर फर्मेंटर यूज़ करेंगे जिसके अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस होंगी, एयर की, न्यूट्रिएंट की, टेम्परेचर की, पीएच की एंड ऑल द थिंग। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसको, इज दैट क्लियर। इसी को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर, बोर्ड में छोटा पढ़ ही गया आखिरकार। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा सेपरेशन, अगला स्टेप होगा सेपरेशन। देखो आगे चल के पढ़ोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ काम किया है तुमने उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और अब आगे जो काम करने वाले हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब इस बायो फर्मेंटर के अंदर जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जब बायो फर्मेंटर के अंदर सारी सेल्स वगैरह ग्रो कर गई होंगी, अपनी मैक्सिमम ग्रोथ वो शो कर चुका होगा, जितना भी जीन एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमली हो चुका होगा। अब जो भी हमारे पास वो न्यूट्रिएंट के अंदर सेल ग्रो कर रही है, इस फर्मेंटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको सबसे पहले फ़िल्टर करना होगा। उनको सबसे पहले क्या तो फिल्टर कर लो या सेंट्रीफ्यूज कर लो। दिस थिंग वुड अंडरगो फिल्ट्रेशन और लेट्स कॉल दैट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बेटा क्या होगा, आपके पास एक अलग से प्रोडक्ट आ जाएगा जो सेलुलर बायोमास है, और दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा जो लिक्विड वाला पार्ट है।
इट मेक्स सेंस अप टू हियर। देन डिपेंडिंग अपॉन किसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ प्रोडक्ट है, वो लिक्विड के अंदर जा रहा है डिजायर्ड जीन ऑफ प्रोडक्ट या फिर आपका सेलुलर बायोमास के अंदर ही है। अगर इसके अंदर है तो इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। अगर सेलुलर बायोमास के अंदर प्रोडक्ट है तो वी विल बी अप्लाइंग सर्टेन टेक्निक टू ब्रेक इट डाउन। अगर लिक्विड के अंदर है तो वी विल बी सप्लाइंग सर्टेन टेक्निक टू filter it. Eventually what we have to do, we have to isolate and we have to purify the product. Next step would be isolation. Next step would be isolation or purification of product. तो यहाँ से जो भी शुरू हो गया वो क्या है बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आगे चल के जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा। जब ये सब चीज़ पढ़ रहे होंगे हम बायो फर्मेंटर के बाद, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल बी मेकिंग ए डेफिनेशन ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फॉर द टाइम बिंग याद रखो कि सेपरेशन से पहले तक जितनी भी टेक्निक है वो सारी अपस्ट्रीम थी, और सेपरेशन के बाद जो टेक्निक शुरू होती है उसमें आपका आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन सब आएगा, पैकेजिंग वगैरह भी बताऊंगा अभी मैं, वो सब किस में आते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन के बाद फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो लास्ट स्टेप होगा उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के भी आना है। मार्केट में बेचने से पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट करना पड़ेगा, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट करना पड़ेगा, स्टोरेज भी कर सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, ये सब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बायोस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एज वेल। चलो ये सब चीज़ें क्यों बताइए, अब सुनो। जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहाँ तक होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक जो काम करते हैं वो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद जितना भी काम शुरू करेंगे वो सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होगा, इसका अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फिर से मैं एक और बार स्टेप रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीनिंग, पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट, और आई विल से देन स्केलिंग अप। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस वाले पार्ट को हमने बोला था स्केलिंग अप। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप फर्मेंटर यूज़ करेंगे, फर्मेंटर के अंदर कंट्रोल्ड पीएच, कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, कंट्रोल सप्लाई ऑफ मीडियम, एयर क्वालिटी, जितनी भी सब चीज़ें वो सब कंट्रोल होगा। देन एक बार जब पूरा कंप्लीट ग्रोथ हो गया होस्ट का, देन हम सेपरेट करते हैं। सेपरेशन के बाद आइसोलेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये होगा आपके की स्टेप्स इन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। एक बार इस पे जरूर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ ले जाते हैं। इज दैट क्लियर अप टू हियर? सो नाउ आई विल से कि आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस यूजिंग ऑर्डिनरी लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, शुरू में आपने क्या किया है कि जितने भी ऑर्डिनरी लेबोरेटरी ऑपरेटर थे, चाहे वो पैटी डिश हो, चाहे वो आपके पास टेस्ट ट्यूब हो, उनसे हमने सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यूजिंग ऑर्डिनरी लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, इट इज़ वेरी यूजुअल टू मेक ए पायलट प्लांट। अच्छा मैं ये डेफिनेशन लिख ही दूंगा, दैट पायलट प्लांट इन्वॉल्व यूज ऑफ स्मॉल फर्मेंटर। पायलट प्लांट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए स्मॉल फर्मेंटर, ये मैं मेंशन कर दूंगा। ये बना लिया आप सबने, राइट? स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आई गेस। आगे बता देता हूँ कि कैसे पायलट प्लांट यूज़ करते हो, कैसे आगे अगले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है? लेट मी क्लियर इट अप। बायो रिएक्टर्स का ना नेक्स्ट लेक्चर में ही इन्वॉल्व कर लेंगे। बायो रिएक्टर्स को, दो अलग अलग तरह के जो बायो रिएक्टर या बायो फर्मेंटर होते हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस भी बतानी है मुझे आपको कि भाई क्या क्या कंडीशंस ना, आप की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं बिफोर यूजिंग ए बायो रिएक्टर। व्हाट आर द की पॉइंट्स बिफोर यूजिंग ए बायो रिएक्टर? सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट ए पायलट प्लांट. So what is the meaning of pilot plant?
pilot plant involves use of a small fermenter। ये जो स्मॉल फर्मेंटर है वो जो आपके लेबोरेटरी के अंदर बड़े बड़े फ्लास्क यूज़ होते हैं उनको हम स्मॉल फर्मेंटर यूज़ करते हैं। देखो जब लार्ज फर्मेंटर की बात करेंगे उसमें वॉल्यूम चला जाता है 1000 लीटर तक, तो जो भी 100 लीटर से कम वाला फर्मेंटर होता है उसको पायलट प्लांट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो पायलट प्लांट इन्वॉल्व यूज ऑफ स्मॉल फर्मेंटर सच एज लार्ज ग्लास फ्लास्क ऑफ लेबोरेटरी। तो आगे जाके कहीं अगर पायलट प्लांट का कहीं कंसेप्ट आता है, देखो पायलट वर्ड आया जिसको आप मूव वगैरह कर सकें, एनीथिंग विच इज मूवेबल इज पायलट प्लांट। इफ यू आस्क मी टू डिफाइन फर्मेंटर, तो आई विल से फर्मेंटर इज द टैंक और फर्मेंटर इज द वेसल इन विच ऑल दिस प्रोसेस वुड बी कैरिड आउट। फर्मेंटर is the tank or vessel in which all the process would be carried out। ठीक है बच्चों, आर वी डन अप टू हियर? और ध्यान से सुनो, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम प्रोसेस को स्केल अप करते हैं पायलट प्लांट से और उसको लेके जाते हैं फुल स्केल पर, आई मीन टू से 100 लीटर से कम वाले फ्लास्क से लेकर हम उसको मूव करते हैं 200 लीटर टू 1000 लीटर वाले फ्लास्क पर। तो जब भी आप कभी अपने प्रोसेस को स्केल अप करते हैं, स्केल अप का मतलब ही बताया था, फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पायलट प्लांट से आप लेके जाते हैं उसको फुल स्केल अप टू 1000 लीटर बायोरिएक्टर तक। कुछ फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। सो मैं ये बता देता हूँ आपको बिफोर स्टार्टिंग द बायोरिएक्टर, व्हाट आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग स्केलिंग अप। Few important factors during scaling up। वन बाय वन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर ही शुरू करेंगे बायोरिएक्टर। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपको एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। देखो आपके पास चांसेस बहुत हैं, कहीं से भी आपको कंटामिनेशन हो सकता है। मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन शुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर as it is very easy to contaminate both input as well as output of the main fermenter। जो चीज़ आप कल्चरिंग के लिए ऐड कर रहे हो वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है, और जो कल्चर होने के बाद उससे निकाल रहे हो वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है। माने कल्चरिंग तक कंटामिनेट नहीं था, पर जब आप उसका आउटपुट ले रहे थे हो सकता है आपने कंटामिनेट कर दिया हो। तो इट इज़ वेरी इजी टू कंटामिनेट द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। सो very important to maintain aseptic condition, the very first factor। second factor याद रखना कि जो physical factor होते हैं, for example mixing, for example aerating the media or getting rid of waste heat, they can create very big problem। और जब भी आप कभी एक स्केल से दूसरे स्केल की तरफ मूव करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है वो एरिएशन का, मिक्सिंग का, और जो हीट प्रोडक्शन है वो है गेटिंग रीड ऑफ द हीट प्रोडक्शन। तो सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको ऐसे मेथड्स इन्वेंट करने हैं जो आपके ये जितने भी फिजिकल चैलेंजेस है उसको इम्प्रूव कर सके। तो फिजिकल फैक्टर लाइक मिक्सिंग
aeration, and most important, and getting rid of waste heat creates biggest problem when moving from one scale to other. ठीक है बच्चों, तो थर्ड फैक्टर की अगर बात करें नाउ, अब देखो लार्ज स्केल कल्चरिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए वी नीड टू फोर्स ऑक्सीजन टू गो इनसाइड द न्यूट्रिएंट. सिंपल एजिटेशन से आप इतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एक स्पेशल डिवाइस होना चाहिए जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके. उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक ऐसी ट्यूब यूज़ करते हैं जिसके अंदर होल होते हैं, और वी यूज़ द टर्म स्पार्जर, और छोटे छोटे बबल्स वगैरह बनते रहते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते रहेंगे. सो आई विल मेंशन हियर टू सप्लाई इनफ oxygen in a large scale culturing tube or bioreactor, air must be forcefully pumped, or air must be forced to enter inside, as simple agitation is not enough. अब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नॉर्मली अ स्पार्जर इज़ यूज्ड. स्पार्जर क्या होता है? अ ट्यूब विद होल्स. अ स्पार्जर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन. आप याद रखना, जब ऑक्सीजन जाएगा तो बबल्स वगैरह बनेंगे, और बबल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लार्ज बबल ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, स्मॉल बबल ज़्यादा एफिशिएंट हो गए. अगर लार्ज बबल बन जाते, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है, दीज आर द बबल्स विच आर फॉर्म्ड, तो आपके पास जो भी एरिया वगैरह है ऑक्सीजन एक्सचेंज का वो कम ही हो जाएगा. सो व्हाई नॉट ये छोटे छोटे बबल्स बने, ताकि जितना भी एरिया ऑफ ऑक्सीजन है विद द न्यूट्रिएंट वगैरह वो बना रहे. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि स्मॉल बबल्स आर मोर एफिशिएंट देन लार्ज बबल्स. स्मॉल एयर बबल्स आर मोर एफिशिएंट देन लार्ज बबल्स. तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था भाई? स्टेरिलाइजेशन. सेकेंड प्रॉब्लम फिजिकल फैक्टर. दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्चुअली. फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज स्टेरिलाइजेशन, सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज मिक्सिंग एंड एरिएशन, थर्ड कैसे ज़्यादा सप्लाई करें ऑक्सीजन का, कैसे ज़्यादा सप्लाई करें एयर का इन द लार्ज स्केल बायोरिएक्टर. फोर्थ होगा जब ना वो चीज़ मिक्स होनी शुरू होगी उस फर्मेंटर के अंदर, तो उसके अंदर ना कुछ फोम वगैरह बनना शुरू हो जाएगा. अगर फोम इकट्ठा होना शुरू हो गया तो बैक्टीरियल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी. तो आपके पास बायोरिएक्टर में कुछ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स भी होने चाहिए, और जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट है दे कैन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, और दे कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्म, एंड उस फॉर्म की इकट्ठे होने की वजह से जितना भी एरिएशन वगैरह का प्रॉब्लम था उसको वो ओवरकम कर सके. ठीक है. सो नेक्स्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 4, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स. फैक्टर नंबर 4, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स शुड बी यूज्ड. एंटी फॉर्मिंग एजेंट क्या करेंगे? दे आर द वन विच आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फॉर्म. और फॉर्मिंग कहाँ की वजह से हो सकती है? स्ट्रेनिंग की वजह से हो सकती है. एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड to reduce the production of foam due to
स्टेयरिंग, इवन एरिएशन भी फॉर्म कॉज कर सकता है। बचपन में आपने जो है वो बाय यूजिंग सर्टेन एयर फॉर्म वगैरह बनाए होंगे, वो सॉप के जो फॉर्म वगैरह बना लेते हैं ना आप, आपके पास वो एक खेलने का टॉय भी आता था जिसके अंदर आप सोप वाटर यूज़ करते थे, डोंट गो देयर। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट आपने डाल दिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद देखो हीट वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई जो हीट वगैरह जनरेट हुई है उसको आप कैसे एक्सपेल करें। तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसको कूल करने के लिए आपको कूलिंग वाटर भी सर्कुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर टू ओवरकम large heat production. Circulation of cooling water to overcome large heat production. And there is one more factor which is very important and which should be in our mind when we have been performing that large scale culturing. And what factor it should be? That should be कि भाई आपके पास ना जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। आपके पास एग्जैक्ट pH, exact temperature, exact supply of nutrient, exact supply of oxygen throughout the medium रहना चाहिए। So sophisticated monitoring, sophisticated monitoring to control pH, temperature, aeration, supply of nutrient, etc. तो these are the few factors which you have to keep in mind while scaling up. क्या क्या फैक्टर है, क्विक रिवीजन। सबसे पहला फैक्टर था आपका मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। दूसरा फैक्टर था कि आपके पास फोम वगैरह ना बने। तीसरा फैक्टर था एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए। चौथा फैक्टर था जो भी फिजिकल है, मिक्सिंग है या फिर आपका हीट प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होना चाहिए। हीट को ओवरकम करने के लिए आप कूल वाटर सर्कुलेट कर सकते हैं। एंटी फॉर्मिंग के लिए हम कुछ बनाएंगे कि ऐसे हम बायोरिएक्टर बनाते हैं जिसके अंदर ब्लेड होते हैं और फोम वगैरह को हटाते रहते हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो बिफोर रियली स्टार्टिंग अवर बायोरिएक्टर टॉपिक, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ ली है। अब आपको पढ़ाया जाएगा बायोरिएक्टर का डायग्राम, बायोरिएक्टर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइस लगे होते हैं, कौन से दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं, क्या कंटिन्यूस कल्चर है, क्या फीड बैच कल्चर है, और कैसे कैसे आप सेल्स वगैरह को ग्रो कराते हैं। इस फ्लास्क में सेल ग्रो कराने के बाद उसको सेपरेशन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी आई गेस द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्लास इज ओवर, थैंक यू।